Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 68 as I'll be continuing with the language structure exercise of lesson 7, The Clever Crab. Students, please take out your notebooks also. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 68 as I'll be continuing with exercise B of language structure, that is contractions. Now what do you mean by contractions, students? Contractions, short form. किसी भी चीज का short form को हम क्या बोलते हैं? Contractions. And in my last video, I had given you some words with their contractions, and I hope all of you have written those 34 words in your English notebook so that you can learn them. Now students, before I start with the exercise, a small revision. Fine. Now students, he apostrophe S. This is the short form of he apostrophe S. बेटा ये दो वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है. He is and he has. दोनों का शॉर्ट फॉर्म सेम है बेटा, ये आपको याद रखना. आई एम रिवाइजिंग इट सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज. ही इज का शॉर्ट फॉर्म भी ही अपॉस्ट्रोफी एस है और ही एस का शॉर्ट फॉर्म भी क्या है? ही अपॉस्ट्रोफी एस है. यू नीड टू रिमेंबर दिस. देन स्टूडेंट्स, ही अपॉस्ट्रोफी डी. ही, ये शॉर्ट फॉर्म किसका है स्टूडेंट्स? ही वुड एंड ही हैड. दोनों का शॉर्ट फॉर्म, ही वुड का शॉर्ट फॉर्म भी ही अपॉस्ट्रोफी डी है एंड ही हैड का शॉर्ट फॉर्म भी ही अपॉस्ट्रोफी डी है. दोनों के लास्ट में डी डी है. आप ऐसे याद रखो, दोनों के लास्ट में डी डी है तो ही अपॉस्ट्रोफी डी. फाइन. एंड अगर शी होगा तो शी अपॉस्ट्रोफी डी हो जाएगा. शी इट एंड शी हैड. फाइन. सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. ही और शी can change but apostrophe D same रहेगा. Fine. तो he is and he has का short form he apostrophe S. He would and he had का short form he apostrophe D. इस साइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? साइन ऑफ apostrophe. Sign of apostrophe. And then students, it apostrophe S is the short form of it is and it has. It is का भी short form है और it has का भी short form है. So don't get confused. ये आपको याद रखना है कि ये दो words के same short form है. He apostrophe S is the short form of he is and he is. Then he apostrophe D is the short form of he would and he had. And then it's is the short form of it is and it has. You need to remember this. And one more thing. Beta, won't किसका short form है? Let's revise. कल हमने बताया था. Won't is the short form of will not. Won't किसका short form है बेटा? Will not. So please do not get confused and write this in your notebook to avoid any confusion. Fine. Apostrophe के बाद S आएगा. Word she is भी हो सकता है और he is भी हो सकता है. Fine. He, she कोई भी word होगा लेकिन apostrophe S he is होगा and he is का भी same होगा. अगर हम she और apostrophe इसकी जगह बेटा अगर हम she apostrophe S लिखेंगे तो वो किसका फॉर्म होगा? शॉर्ट फॉर्म होगा she is and she has का. So this you need to keep in mind कि he की जगह she भी हो सकता है. Fine. But he apostrophe S is the short form of he is and he is. He apostrophe D is the short form of he would and he had. आप ऐसे याद रखो जो लास्ट वर्ड्स हैं ये सेम है. S इसमें भी है, S इसमें भी है, S इसमें भी है.
फाइन. सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. Now I hope all of you have written this. And won't किसका short form है? Will not. Will not and you have to remember this. Now students, I will be doing the exercise given on page number 68. That is match the words with their short forms. Now we need to match the words with their short forms. Students, now I'll be writing the correct word in front of the words और आप उसको match कर लीजिएगा. The first one is do not. The second is we are. The third is I am. Fourth is not. Fifth is she will. Now, let's start this. Beta, the short form of do not is don't. Do not का short form क्या है? Don't. So, right hand side पे बेटा जो don't word है उसके आगे आप number 1 लिख लीजिए. Fine. You write number 1 over here so that you remember कि यहाँ पे इस जगह पे over here you write number 1. That do not short form is don't. The short form of do not is don't. तो जहां भी बेटा don't लिखा है right side में उसके आगे you write number 1. Please write number 1. The short form of do not is don't. Then children, the second words are we are. And the short form is we apostrophe re. Yesterday I told कि r का short form क्या होता है? re. And before re हम कौन सा sign लगाएंगे? Sign of apostrophe. So we are, we are. Now in the blue box students, fifth word is we apostrophe re. उसके सामने आप number 2 लिख लीजिए. Write number 2 in front of this. So we are, इसका short form है बेटा we apostrophe re. Then students, the third word is I am. I apostrophe m. I apostrophe m. ये I am का short form है. इस m के लिए हम कौन सा short form यूज करते हैं? Single m. I am. I apostrophe m. Then is not. Is not. The short form is isn't. जो ब्लू बॉक्स में बेटा सेकेंड वर्ड है उसके सामने आप नंबर 4 लिख लीजिए. आई एम फर्स्ट वर्ड है ब्लू बॉक्स में, इसके सामने आप नंबर 3 लिख लीजिए. बट प्लीज डू नॉट ड्रॉ लाइन्स टू मैच. इट लुक्स वेरी अनटाइडी. नाउ यू आर बिग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3. राइट नंबर्स सो दैट थिंग्स लुक नीट. फाइन. इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बेटा? इजंट. इज नॉट. नॉट जहां भी जिस भी वर्ड में बेटा हो, डू नॉट का डोंट है ना, इज नॉट का इजंट, हमेशा एन के बाद अपोस्ट्रोफी एंड टी. ये आपको याद रखना है
कि जितने भी नॉट वाले वर्ड्स हैं उनमें एन के बाद अपॉस्ट्रोफी और टी आएगा. सो प्लीज रिमेंबर दिस. फाइन. सो इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया बेटा? इजंट. देन शी विल. विल के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी अपॉस्ट्रोफी डबल एल. जहां भी विल है, विल का शॉर्ट फॉर्म हमेशा खाली डबल एल होता है. आफ्टर अपॉस्ट्रोफी व्हाट यू हैव टू यूज? डबल एल. देन द सिक्स्थ वन चिल्ड्रन इज हैव नॉट. हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बेटा? नाउ फिफ्थ में आपने जहां भी बेटा शी अपॉस्ट्रोफी डबल एल है उसके सामने आप नंबर 5 लिख लीजिए. नाउ द सिक्स्थ वन विल, सॉरी, हैव नॉट. हैव नॉट में हम क्या करेंगे? द थर्ड वन इन द ब्लू बॉक्स, हैवंट. राइट. नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ इट. हैव सेम वर्ड है. नॉट की जगह हम क्या करेंगे? एन अपॉस्ट्रोफी टी. नॉट के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? एन अपॉस्ट्रोफी टी. नाउ द सेवेंथ वन, यू विल. यू विल का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बेटा? यू. फोर्थ वन इन द ब्लू बॉक्स, उसके सामने आप लिख लीजिए 7. यू अपॉस्ट्रोफी डबल एल. विल के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? डबल एल. फाइन. डबल एल. सो यूल is the short form of you will. Then the eighth word is cannot. Cannot का short form होता है बेटा can't. जितने भी not वाले words होते हैं helping verb पहले same, अब डबल एन है, हम खाली इसमें बेटा सिंगल एन यूज करेंगे. कीप इन माइंड. तो कैन अपॉस्ट्रोफी टी कांट. कैनॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कांट. कैन अपॉस्ट्रोफी टी. यहाँ पे डबल एन है बेटा इसमें कैनॉट में. बट रिमेंबर जब हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो हम खाली सिंगल एन यूज करेंगे. देन चिल्ड्रन द नाइन्थ सेट ऑफ वर्ड्स इज he is. he is का शॉर्ट फॉर्म क्या है? he apostrophe s. he is का शॉर्ट फॉर्म क्या है? he apostrophe s. he is का he apostrophe s. then the 10th word is they are. And the short form is they apostrophe re. So जो भी ये numbers है बेटा आप उनके सामने लिखते जाइए. Fine. Let's revise once again children. Do not का short form क्या है? Don't. तो don't जो भी है जहां भी लिखा है blue box में उसके सामने आप क्या लिखेंगे बेटा? Number 1. You can write either on the right side or on the left side. तो do not का short form क्या है? DON अपॉस्ट्रोफी T. शॉर्ट फॉर्म में हम कौन सा साइन लगाते हैं बेटा? साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी. ऊपर एक छोटा सा हुक टाइप कॉमा होता है उसको हम बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी. फाइन. डू नॉट का DON अपॉस्ट्रोफी T. वी आर का WEV अपॉस्ट्रोफी RE. आर का ARE का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? RE. और नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? N अपॉस्ट्रोफी T. Then I am, I apostrophe M. Then it's not ISN apostrophe T. जो भी नॉट वाले वर्ड्स हैं वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब is, can, have जो भी वो उसके बाद N apostrophe T. जिसमें भी नॉट लगा है N apostrophe T ये आप याद कर लो. is not ISN apostrophe T. She will. शी अपॉस्ट्रोफी डबल एल. विल का जो शॉर्ट फॉर्म है अपॉस्ट्रोफी के बाद हमेशा डबल एल आता है. ये आप याद रखो. देखो यू विल में यहां भी डबल एल लगा है. शी विल में, हाँ, यू विल में भी डबल एल. सो विल का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज अपॉस्ट्रोफी एंड डबल एल. देन हैव नॉट
have n apostrophe t, haven't, have n apostrophe t. Then you will, u apostrophe double l, cannot, can apostrophe t, and remember cannot में double n है, but हम can't में we will only use single n. Then he is, he apostrophe s, and then they are, they apostrophe आरी. आर ए आर ई, आरी के लिए हम हमेशा देखो वी आर खाली अपॉस्ट्रोफी आरी, दे आर अपॉस्ट्रोफी आरी. तो जहां भी आर है उसके लिए हम अपॉस्ट्रोफी आरी यूज करेंगे, जहां भी नॉट है उसके लिए हम एन अपॉस्ट्रोफी टी यूज करेंगे, जहां भी विल है अपॉस्ट्रोफी डबल एल यूज करेंगे, जहां भी इज हैज है अपॉस्ट्रोफी एस हेल्पिंग वर्ब के बाद. ये आप थोड़ा सा याद कर लो तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा. फाइन, आई होप एवरीबडी हैज डन चिल्ड्रन, एवरीबडी. मैंने मैच नहीं किया, मैंने करेक्ट वर्ड सामने लिखे हैं और आप ब्लू बॉक्स में ये सारे नंबर्स डाल लीजिए वर्ड्स के आगे. डोंट के आगे 1, वी आर के आगे 2, है ना, शॉर्ट फॉर्म्स के आगे आपको ये नंबर डाल लेने हैं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. फाइन, I hope everybody has done it in the book, students. Now, I'm going to erase this and start with the grammar exercise. But before I end, the word contractions, you will feel कि बहुत बड़ा word है. But मैम ने क्या बताया? Contractions का मतलब क्या होता है? Short forms. किसी भी चीज का short form को हम बोलते हैं contraction. उसको छोटा कर देना. हाँ, किसी भी चीज को छोटा करने को contraction बोलते हैं. Contractions are short forms. Now students, I'm going to start with grammar glee. And the exercise which we are going to do today is based on tenses. Now, what do you mean by tense, children? हमारी जो exercise है tenses के ऊपर है. और टेंसेस का मतलब होता है बेटा टाइम. टेंसेस मीन्स टाइम. किसी भी वर्ड से जिससे हमको टाइम पता लगता है वो जनरली वर्ब्स होते हैं. और वर्ब्स क्या होते हैं? जो भी एक्शन हम करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं वो वर्ब है. और वो वर्ब जो है बताता है हमको टाइम कि एक्शन अभी हुआ तो प्रेजेंट टेंस, है ना, जो हो चुका है तो पास्ट टेंस, और होने वाला है तो फ्यूचर टेंस. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 8-9 ईयर्स के चाइल्ड हो तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है. लेकिन आप 8-9 ईयर्स से पहले एक छोटे बेबी थे, ये आपका पास्ट टेंस. आप बेबी थे, अभी तो आप चाइल्ड हो गए हो. और 8-9 ईयर्स के बाद आप एक 16-17 ईयर्स के टीनेजर बन जाओगे, वो आपका फ्यूचर टेंस है. तो टेंस का मतलब है जो टाइम बताता है ना, जो टेंस का मतलब है टाइम. एंड बेटा 3 टेंसेस होते हैं, है ना. कितने टाइप के टेंसेस होते हैं बेटा? 3 टेंसेस. व्हाट डू यू मीन बाय टेंसेस चिल्ड्रन? टेंस का मतलब होता है टाइम. और किस वर्ड से हमको टाइम पता लगता है? वर्ब से. और वर्ब्स क्या है? जो भी हम एक्शन करते हैं, ईट, प्ले, ड्रिंक, स्लीप, जंप, राइट, लिसन, ये सब वर्ब्स हैं. जो भी हम एक्शन, जो भी वर्ड्स हमारे एक्शन बताते हैं वो वर्ब्स हैं. और जो टेंसेस हैं वो मेन किससे पता चलते हैं हमको? वर्ब से. अब बेटा टेंसेस जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. पहला टेंस कौन सा है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. द सेकेंड इज सिंपल past tense, and the third is simple future tense. 3 tenses हैं. The first is simple present tense, जो अभी है, जो भी अभी है.
है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जो पास्ट में था, जो ऑलरेडी बीत चुका है ना। अभी आप क्लास 3 में हो, है ना, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। एंड आप क्लास 2 में थे, वो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। और नेक्स्ट ईयर आप किस में जाओगे, 4th में, वो कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब आने वाला, पास्ट मतलब जो बीत गया है, और प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है। हमने ग्रामर में यूनिट में एक एक्सरसाइज की है, दैट इज बेस्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। हमने एक एक्सरसाइज की है। और बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस जनरली उन वर्ड्स के लिए वर्ब्स में हम यूज करते हैं जो एक्शन हमेशा होता है, जो रेगुलरली एक्शन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किन सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा होता है, जैसे आई ब्रश माई टीथ, हम रोज ही ब्रश करते हैं टीथ, ये एक एक्शन है जो हम रोज रिपीट करते हैं, है ना। आई ब्रश माई टीथ, है ना। आई गो टू स्कूल, है ना, हम स्कूल भी रोज जाते हैं, हम ब्रश भी रोज करते हैं। तो जो एक्शन लगातार रिपीट होता है उसमें हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। माई मदर कुक्स फूड, सबकी मम्मी रोज खाना बनाती है ना, वो एक काम है जो रोज होता है, तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो काम हम रेगुलरली रोज करते हैं वो जनरली किस में होते हैं बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई पॉलिश माई शूज, हम रोज अपने शूज पॉलिश करते हैं, कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सन रोज राइज करता है कि नहीं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है ना। सिंपल पास्ट टेंस वो एक्शन बताता है जो पास्ट में कभी हुआ था, पास्ट में कभी हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आई एट माई डिनर येस्टरडे, कल रात में आपने डिनर खाया था, फॉर एग्जाम्पल। तो एट, ईट की जगह हमने कौन सा वर्ड यूज किया, एट, है ना। ईट का पास्ट टेंस क्या हुआ, एट। तो बेटा जो वर्ब्स होते हैं उनके भी टेंसेस हमको याद करने पड़ेंगे कि पास्ट टेंस में ईट का एट हो जाएगा, स्लीप का स्लेप्ट हो जाएगा, राइट का रोट हो जाएगा। तो कुछ वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि अच्छा ये अभी प्ले है तो इसका पास्ट टेंस क्या होगा, उसमें ईडी लग जाएगा तो प्लेड हो जाएगा। तो कुछ वर्ब सेम ही रहेगा बट उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, वो पास्ट में हो जाएगा, है ना। और वर्ब के पहले अगर हम विल और शैल लगा देंगे तो वो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर क्या होता है, जो बताता है कि जो कुछ आने वाला है, वो कौन सा टेंस है बेटा, फ्यूचर टेंस, है ना। जैसे आई अपियर्ड, अभी तो मैं आपको पास्ट टेंस का एग्जाम्पल दे रही हूं, आई अपियर्ड इन द यूनिट टेस्ट एग्जाम। अपियर्ड, आपने यूनिट टेस्ट एग्जाम दिया था, है ना, आप उसमें अपियर हुए थे, लेकिन वो तो हो चुका है यूनिट टेस्ट, है ना। सो वो कौन सा टेंस था, पास्ट टेंस। अभी हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, अभी हुआ नहीं, आने वाला है, दैट इज फ्यूचर टेंस। आई विल अपियर इन माई हाफ ईयरली एग्जाम, तो उसमें आपने बोला आई अपियर्ड, तो वो पास्ट टेंस। बट अभी आप बोल रहे आई विल अपियर इन माई हाफ ईयरली एग्जाम, तो आपने अपियर के पहले क्या लगा दिया, विल, है ना, विल या शैल। आई के साथ हम शैल यूज करते हैं, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल, और यू के साथ हम विल यूज करते हैं। तो आई शैल अपियर इन द हाफ ईयरली एग्जाम और यू विल अपियर इन द हाफ ईयरली एग्जाम। तो शैल और विल वर्ब के पहले लगाने को हम कौन सा टेंस बोलते हैं बेटा, फ्यूचर टेंस, है ना। वी विल कम टू स्कूल व्हेन द स्कूल रीओपन्स, है ना, जब स्कूल खुलेगा तो हम स्कूल जाएंगे, तो आपने क्या लगा दिया, वर्ब के पहले विल और शैल, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी। तो बेटा टेंसेस का मतलब क्या होता है, टाइम, जिससे पता चले कि एक्शन अभी हो रहा है, कि हो चुका है या होने वाला है। जो टाइम बताता है उसको हम टेंसेस बोलते हैं। एंड हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, देयर आर 3 टेंसेस।
The first is simple present tense, the second is simple past tense, and the third is simple future tense. अब बेटा मैं आपको अभी सबसे पहले कौन सा समझाने जा रही हूं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. फाइन. मैं आपको क्या समझाने जा रही हूं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब यूज करते हैं? टू शो an action which takes place regularly. कोई भी एक्शन जो रेगुलरली होता है वो किसमें होता है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. कोई भी एक्शन जो रेगुलरली रिपीट होता है दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. फाइन. कोई भी एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल देती हूं. आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स. I play with my friends. है ना? यहां पे प्ले, आप हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करते हो, ये एक्शन हमेशा होता है. सो दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. फाइन. सेकेंड, यू comb your hair. You comb your hair. है ना? ये एक्शन भी क्या हो रहा है? हमेशा होता है. एवरीबडी combs the hair. है ना? अगर यहाँ पे आपको ये जो एक्शन रेगुलरली होते हैं वो सब किस में होते हैं बेटा? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. देन द थर्ड वन, she keeps her books on the table. She keeps her books on the table. अब बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखो. यहाँ पे मैम ने आई के साथ प्ले लगाया है ना? प्ले एज इट इज लिखा है. कोम भी वर्ब है. सेकेंड सेंटेंस में यू कोम योर हेयर, कोम भी है. लेकिन थर्ड वाले सेंटेंस में शी कीप्स हर बुक्स ऑन द टेबल. कीप के साथ हमने क्या लगाया है? एस लगाया है. अब ये हमको एक रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो हमको समझना पड़ेगा. अच्छा, उसके लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए सेंटेंस का, है ना? व्हाट इज द सब्जेक्ट चिल्ड्रन? सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में एक्शन करता है. फर्स्ट सेंटेंस में आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के संग कौन खेल रहा है? आई. तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई. सबसे पहले हमको क्या पता करना है? सब्जेक्ट पता करना है. क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज होता है. और सब्जेक्ट कौन होता है बेटा? जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है. आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स. इसमें कौन खेल रहा है फ्रेंड्स के संग? आई. तो इसमें बेटा सब्जेक्ट क्या है? आई. सेकेंड सेंटेंस में यू कोम योर हेयर. कौन कोम हेयर कर रहा है? कौन एक्शन कर रहा है? यू. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू. थर्ड सेंटेंस में शी कीप्स हर बुक्स ऑन द टेबल. कौन टेबल पे बुक रख रहा है? कौन एक्शन कर रहा है? शी. सो सब्जेक्ट क्या है? शी. तो बेटा जो भी एक्शन करता है सेंटेंस में वो क्या होता है? सब्जेक्ट. अब बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो रूल है वो ये है रूल बेटा कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल जानते हो ना, एक से ज्यादा. अभी ये 3 सेंटेंसेस सबको समझ में आ गए? एक मिनट, मैं आपको कुछ सेंटेंस अभी चेंज करके बताती हूँ कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस है.
आपका फर्स्ट सेंटेंस था आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स. अब मैं फोर्थ सेंटेंस में लिख रही हूं अमृत एंड आदित्य प्ले with their friends. और मैं फिफ्थ सेंटेंस में लिख रही हूं खाली अमृत plays with his friend. Now children, अब आप यहां पे ध्यान से देखो. यहाँ पे अमृत एंड आदित्य प्ले विद देयर फ्रेंड्स. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है? अमृत एंड आदित्य. हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. अमृत एंड आदित्य दो लोग हैं, सब्जेक्ट हैं, है ना. तो ये प्लूरल है ना. तो यहाँ पे प्ले एज इट इज, वर्ब एज इट इज, इसमें कोई एस नहीं लगेगा. लेकिन अब फिफ्थ सेंटेंस में देखो अमृत प्लेज विथ हिज फ्रेंड. हम खाली किसकी बात कर रहे हैं? अमृत. अमृत सब्जेक्ट है ना. लेकिन ये सब्जेक्ट सिंगुलर है. यहाँ पे अमृत एक अकेला है और यहाँ पे अमृत एंड आदित्य दो लोग हैं. तो क्या डिफरेंस है? यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है और यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है. तो जहां पे भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो वहां पे जो वर्ब होता है वो एज इट इज लिखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं. लेकिन जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां पे हम वर्ब में क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं. तो ये क्या हो जाता है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. फाइन. नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग सम मोर एग्जाम्पल्स ताकि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा क्लियर हो जाए, है ना. अभी इतना याद रखना है कि जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहां पे वर्ब में एस लगता है. किस टेंस में बेटा? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. और जहां पे सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहां पे वर्ब में एस नहीं लगता है. सो आई होप स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी समझ में आया होगा. नाउ टुमारो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन more examples so that simple present tense gets clear to you. Students, before I end this video, a small reminder. Please start learning and revising all the taught chapters as your half yearly exams are coming and you need to really work hard and give good results. That's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.